स्टार्ट किया कोई आ रहा है? Good morning everyone. So this is lecture number 4 and today's lecture is very important because today onwards we are starting with the mathematics of this. Till I tell you, please keep your books closed. Now in the previous class we did definitions like equal vectors, parallel vectors, negative of the vector, anti-parallel vectors. Then we said that equal vectors are always parallel, but parallel vectors need not be equal. Thereafter we said that a vector and its negative are always anti-parallel, but anti-parallel vectors need not be negative. After that we did co-initial vectors, co-terminus vectors, co-planar vectors, yes or no, co-linear vectors, and finally we did zero vector या तो null vector, and we did unit vector. बराबर? तो बेटा आगे के definitions I am sure रिपीट करने की जरूरत नहीं. राइट नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन which is going to help us to understand today's lecture. One is position vector, another is laws of vector addition. We have got commutative law, we have got associative law, we have got distributive law. They are very simple, extremely simple. After that, by the end of the lecture, we will come across two laws. One is called triangle law, another is called parallelogram law. So 99.9% we will be able to finish the laws of vector addition today. Now in the previous class, if you remember, ये पार्ट बेटा शुरू कर चुका था मैं, right? This is a rectangular box. This is say x axis, this is say y axis, this is say z axis. ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आप इसको x बोलो, इसको y बोलो, इसको z बोलो. इसमें से जो मर्जी में आता है उसको x बोल सकते हो, जो मर्जी में आता है उसको y बोल सकते हो, और जो मर्जी में आता है उसको z बोल सकते हो. राइट? व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस बेटा? व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस? कंपल्सरीली i. मतलब अगर x बोला तो उसके साथ में i ही आना चाहिए. बराबर? मान लो आपने इसको x एक्सिस बोला होता, तो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज i. What is unit vector along y axis? J. And what is unit vector along z axis? Yes or no? Okay. Now O is the reference point. जब कुछ भी नहीं देते हैं ना, then O is the reference point. And point P is your point under consideration. इसको आप 2 डायमेंशन में बोल सकते हो x, y, और 3 डायमेंशन में बोल सकते हो x, y, z. Right? What is this vector beta? If this point is P and this point was O, then what is this vector? OP vector. बस ये OP वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ये OP वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. मतलब अगर मैंने 2 डायमेंशन लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 डायमेंशन? 2 एक्सिस, x एंड y, या तो y एंड z या तो x एंड z. मेरा एक पॉइंट कौन सा होगा बेटा? O, which is 0,0, और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? P, which is x, y. तो what is this vector? Tell me. Is it position vector? It is position vector because it is giving you idea about position of the particle, right? अगर बेटा मैं इसको origin बनाता हूँ और ये particle है, तो ये position vector हुआ, right? अब ये origin में shift कर सकता हूँ जब भी चाहूँ, तो ये position vector हुआ. ये position vector हुआ. It is something like I am staying in Mumbai, so I can fly from Mumbai to Melbourne, Australia. I can fly from Mumbai to Mexico, right? I can fly from Mumbai to Dubai. But what if I am not based in Mumbai? What if I am staying in Delhi? That means origins change, no? That means I will fly from Delhi to Melbourne. I will fly from Delhi to Dubai. I will fly from Delhi to Mexico, right? What if I am staying in Chennai? That means my origin is changed. Yes or no? So when nothing is mentioned, which is the simplest origin? 0,0 in 2 dimension. What is origin in 3 dimension? 0,0,0. अभी बेटा पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? आपने ये वेक्टर को क्या बोला? OP की PO? OP बोला. इसका मतलब OP वेक्टर को लिखना होता है P minus O times I plus P minus O times J. कैसे लिखते हैं? P minus O times I and P minus O times J. अभी I के साथ कौन आना चाहिए?
x, तो इधर आएगा px माइनस ox। px का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, ox का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट o। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, py over, right? Now what is px? x, no? What is px? x. And what is py? y. What are ox and oy both? 0, 0. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? Can I say OP vector is x minus 0 times I plus y minus 0 times j? तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? वेक्टर OP is xi plus yj plus yj बराबर। फैंटास्टिक, वेरी गुड बेटा। इसलिए मैंने पहले 2D एक्सप्लेन किया। मान लो ये 3D होता तो मैं इधर क्या लिखता? 0, 0, 0। इसको क्या लिखता? वही मैं नेक्स्ट में करने वाला हूँ। अभी जो मैंने लिखा किसके लिए लिखा? इन 2D। अभी मैं लिखने जा रहा हूँ इन 3D। यस और नो? चलो बेटा, 3D में ये वेक्टर कैसे लिखूंगा? दिस इज पॉइंट O, 0, 0, 0. This is point P, x, y, z. So my vector is vector OP. बराबर, vector OP. So how will I write this vector? Directly लिखूं चलेगा क्या? Directly लिखूं because आपके पास ये background है. Will it be px minus ox times I plus py minus oy times j plus pz minus oz times k, right? But ox, oy and oz are 0, 0, 0. Something minus 0 is the same thing. तो OP वेक्टर आप कैसे लिखोगे बेटा बताओ? Should it not be x times I plus y times j plus z times k? Yes or no? Z times k. यहाँ तक समझा? ये वेक्टर हुआ कि स्केलर? वेक्टर। This is what position vector in 3D. Title in 3D. What is this? पोजीशन वेक्टर इन 2D। यहां तक समझा? अभी ये तो वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे सिर्फ इसके साइज में इंटरेस्ट है। तो बेटा इन 2 डायमेंशन व्हाट विल बी साइज ऑफ वेक्टर OP? ये डायग्राम। व्हाट विल बी साइज ऑफ वेक्टर OP? शुड इट नॉट बी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? अब ये ओरिजिनली आया कैसे होगा? ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप लोगों का स्कूल लेवल का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में आता है। ध्यान से सुनो। आप लोगों ने अगर इसको स्कूल लेवल में लिखा होता तो कैसे लिखा होता? वेक्टर OP is x2 minus x1 का स्क्वायर, y2 minus y1 का स्क्वायर रूट, और बिकॉज अभी इसमें I और J नहीं है, therefore this is size of vector OP और simply distance OP, राइट? याद है इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला था? मॉड्यूल ऑफ अ वेक्टर और मॉड ऑफ अ वेक्टर और साइज ऑफ अ वेक्टर। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये फॉर्मूला का मैंने मॉड लिखा। यस और नो? व्हाट इज x2 हियर एंड व्हाट इज x1 हियर? x2 is x, x1 is 0, y2 is y, y1 is 0। तो बेटा मामा मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या आया? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस और नो? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बोलने का एकदम सिंपल तरीका है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बोलने का एक एकदम सिंपल तरीका है। एंड व्हाट इज दैट? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is square root of sum of squares of rectangular components। अब rectangular components इसलिए बोलते हैं because x axis और y axis डेफिनेटली एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको y और इसको z लिया तो भी वो परपेंडिकुलर होते ही।
किसी ने x और z दिया तो भी वो परपेंडिकुलर होते ही है. That is the reason they are called orthogonal unit vectors. आप 2D इसको ले सकते हो, आप 2D इसको ले सकते हो और आप 2D इसको ले सकते हो. So this is perpendicular to this, this is perpendicular to this, this is perpendicular to this. That means Pythagoras theorem is working for all combinations. Yes or no? अगर बेटा ये 0,0 नहीं होता, मान लो ये 1,2 होता और ये 5,6 होता, तो आप क्या करते? तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते. ये तो यहाँ पे x1 और y1 0 है इसलिए हम लोगों ने लिखा, लेकिन अगर वो 0 नहीं होता तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू राइट वेक्टर OP, O is the initial point and P is the final point. तो you should write final point first and then initial point. तो ये आप लोगों ने स्कूल में किया हुआ फॉर्मूला था. And what was the name of this formula? Distance formula. अभी समझ में आ रहा है बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? So most important, अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला कौन सा है फिर? This is displacement formula. What is this? How to differentiate between the two? Very simple. अगर बेटा इसमें I और J आया मतलब ये वेक्टर है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है. आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, इसमें से I और J निकल गया, इसमें I और J है ही नहीं. Yes or no? That means वो स्केलर है. किसका स्केलर है? इसी का स्केलर है. मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट याद करो, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस. यस और नो? मतलब ओवर हियर यू आर इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन एंड ओवर हियर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन. तो ये मैंने किस में लिखा? वेक्टर इन 2D. किसको? इसको. बराबर. अभी आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो क्या? जैसे ये 2D में था वैसे आपको मुझे 3D में बोलना है. फर्स्ट यू विल गिव मी वेक्टर OP. वेक्टर OP ये बोलो. वेक्टर OP बोलो. इज इट x2 minus x1 times I plus y2 minus y1 times j plus z2 minus z1 times k? Yes or no? बोलो. डिस्टेंस वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट इन 2D की इन 3D. So can I say this is displacement vector means my title which is also called position vector in 3 dimension. अभी ये कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से 0,0,0 के हिसाब से मैं इसको कैसे लिखूंगा? डायरेक्ट लिखूं चलेगा. इज इट x minus 0 times I plus y minus 0 times j plus z minus 0 times k? इसका मतलब OP वेक्टर क्या हुआ बेटा? इज इट x times I plus y times j plus z times k? ये मैंने ऑलरेडी इधर लिखा था. यस और नो? कैसे आया समझा? डिस्टेंस वेक्टर 3D में नहीं आ सकता. आ रहा है ना, वही कर रहा हूँ. रुक जाना थोड़ा. ये 2D में लिखा ना, तो अब इसको 3D में लिखो. 3D में कैसे लिखोगे बताओ? OP is square root of sum of squares of components. So should it be x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square? Answer to your question बेटा. ये डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस हुआ ना. This is distance. So this is distance in what? 2D. Between which point and which point? Exactly. So what is this? Distance in 3D. Between which point and which point? So can I say as per the diagram, it is x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square. So should it be root of x square plus y square plus z square? So tell me what is this OP? What is this OP? Answer to your question. Distance in 3D. डिस्टेंस इन 3D. समझ में आया क्या हो रहा है? टेल मी, अगर ये ओरिजिन है, कैमरा में कहाँ तक आ रहा है बेटा? यहाँ तक आ रहा है कि यहाँ तक आ रहा है? ओके. सपोज ये ओरिजिन है. डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 1D. डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 1D. डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 1D. बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? 2D ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी आया, y कोऑर्डिनेट भी आया. बराबर. व्हाट अबाउट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? एग्जैक्टली. x भी आया,
y भी आया, z भी आया। समझा? ध्यान से देखो, ये वर्क कर रहा है कि नहीं? आप क्या बोलते हो? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सोच के देखो, इट कैन नेवर बी size of the vector can never be module of a vector can never be displacement एक बार नेगेटिव हो सकता है। एग्जांपल देता हूँ, इसको आप OP के बदले PO लिखो, ये वेक्टर को आप OP के बदले PO लिखो, तो क्या आंसर आएगा? माइनस एक्स आई माइनस वाई, क्योंकि आपने एरो उल्टा कर दिया, मतलब वेक्टर नेगेटिव हुआ। लेकिन जब उसके स्क्वायर्स करके देखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर, minus y का square also is plus y square. So most important golden sentence. What is that? A vector can be negative. A vector can be negative. A vector may be negative, but its magnitude can never be negative। ये मैं जो छोटे छोटे sentences लिख रहा हूँ ना बेटा, they are themselves very good MCQs, very important MCQ, very important MCQ, very important MCQ, formula, very important MCQ, very important MCQ, very important MCQ, very important MCQ। अब मैं एक वेक्टर लिखता हूँ और आपको 7 क्वेश्चंस पूछता हूँ। अगर मैंने वेक्टर OP बेटा दिया 3i प्लस 4j प्लस 5k, मुझे 7 आंसर्स चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ओनली अलोंग एक्स एक्सिस? 3i नहीं बोलने का, मैग्नीट्यूड बोला ना मैंने। मैग्नीट्यूड मतलब ij के आना ही नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, तो आपका आंसर बराबर है। व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर? y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर 4j, किसी ने तो i बोला। व्हाट इज z कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर? व्हाट इज वेक्टर इन xy प्लेन? 3i plus 4j। yz प्लेन? xz प्लेन? x y z स्पेस 3D। 7 आंसर हो गए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने वेक्टर पूछा था, x component, y component, z component. Can we call them rectangular components? Because they are the sides of a rectangular box. अभी मुझे साइज चाहिए, साइज। सोच के बोलना बेटा, सोच के। What is size of this vector along x-axis? 3. Very good. Along y-axis? 4. Along z-axis? 5. अभी सोच के। In xy plane? 7. 5. साइज पूछा है। 5. अभी बेटा 3 + 4 नहीं आएगा। मैं 3 मीटर ऐसे गया और 4 मीटर ऐसे गया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं डायरेक्ट नहीं जा पाया था। अगर मैं डायरेक्ट जाता तो 5 ही चलता कि 7 चलता। मैं इधर 3 मीटर गया और इधर 4 मीटर गया। क्यों? मेरे पास डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं था। अगर मैं डायरेक्ट जा पाता तो मैं 3 + 4 क्यों चलता, डायरेक्ट 5 चलता ना। तो हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बेटा? Is it this distance formula? चलो बेटा, what is size of this vector in xy plane? Root of 3 square plus 4 square. मतलब 5. Why not plus minus 5? चलो, apply the same logic. What is the size of this vector in yz plane? Root 41. Proud of you. Very good. 16 plus 25 और उसका रूट। What will be size of this vector in xz plane? Root 34. Very good. Root of 3 square plus 5 square. Right? Finally, what is the size of this vector in x, y, z space? Is it root 50? 3 square is
9. 4 square is 16. 5 square is 25. Total is 50. So is it root 50? अच्छा, can I write this as 5 root 2? Yes. बराबर? Check करो. Can I write this as 7.070? Anybody any idea? मैंने आपको 3-4 रूट्स याद रखने को बोला. Root of 2 is 1.414. Root of 3 is 1.772. Root of 2 1.414. बराबर ना? Into 5. 14 5 is 70. तो डेसिमल पॉइंट इधर है 1 2 3 1 2 3. That's why. अब ये मैंने क्यों लिखा मालूम है? आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला रूट बोल देंगे 5 रूट 2, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन देंगे 2 रूट 5. तीसरा ऑप्शन देंगे 7.071 और चौथा ऑप्शन देंगे बोथ ए एंड सी. अब जैसे ही आपका आंसर ये आया, आप खुश हो गए, मेरा आंसर आ गया. पता चला ये भी तो आंसर था. So you have to have a habit of reading all 4 options. Is that clear? ये आ गया, आप खुश हो गए, मार्क कर दिया. You are expecting +4. पता चला you are landing about to -1. Yes sir, because the correct answer was both ways. C भी तो correct ही था ना. लॉजिक समझा बेटा? Please let me know. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो मैंने लास्ट लेक्चर में शुरू कर दिया था. याद आ गया? Okay. Now tell me. पर ऑप्शन सी और आंसर में तो डिफरेंस है ना 0.001 का. Sorry. ऑप्शन सी और वन लाइक आंसर में डिफरेंस है 0.001 का. That is okay. That's okay. Yeah, तो because कितना difference because ये बेटा 7.070707 ऐसा होता है. बराबर. तो ये जो 5th डिजिट है ना, ये 7 है, तो इसको बढ़ा के इसको 1 करते हैं. Yeah, don't worry. Correct? उतना एम्बिग्यूटी वाला लोग ऑप्शन देंगे ही. अगर बोथ दिया तो राउंड ऑफ करके. राइट? बैक हियर. I, J, K are orthogonal unit vectors, understood? What was the meaning of the word orthogonal? Mutually perpendicular. बाद में हम लोगों ने क्या बोला था? X स्केलर है, मुझे इसको वेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाऊं? X वेक्टर is X times unit vector. Y vector, yes, is Y times unit vector, and Z vector is Z times unit vector. So what is the meaning of unit vector? यहाँ से बेटा I कैप क्या आया? Vector X upon magnitude of that vector. J कैप क्या आया? Vector Y upon magnitude of vector Y. K कैप क्या आया? Vector Z. तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या आया बेटा? What is unit vector of any vector? What is unit vector of any vector? Is it vector upon its size या तो magnitude? समझा? Now listen to this very carefully. मुझे वेक्टर A का यूनिट वेक्टर लिखना है. तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है? कैट. Is it vector A upon magnitude of that vector A? अब मान लो बेटा ये वेक्टर A xi plus yj plus zk था. बराबर? हमेशा आदत डालने का 3 डायमेंशन में लिखने का. एडवांटेज 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन जाना है ना, तो बहुत इजी है. मेरे पास ये पॉइंट्स है 3 4 5. अब मैं बोलता हूँ नहीं मुझे आंसर सिर्फ xy प्लेन में दो, तो इसको लेने का ही. बट 3 डायमेंशन लिखा होगा तो बेटर है ना. अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या आएगा बेटा? शुड इट नॉट बी रूट ऑफ x square plus y square plus z square? Yes or no? Yes. मतलब आप यूनिट वेक्टर के भी 7 आंसर्स लिख सकते हो. आप यूनिट वेक्टर के भी 7 आंसर्स लिख सकते हो. सोच के बोलना. व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस ओनली? अगर ये वेक्टर है 3i plus 4j plus 5j, अगर ये वेक्टर है तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस अलोंग x एक्सिस? ओनली i. वेरी गुड. क्योंकि इधर मैं 3i लूंगा, मैंने x एक्सिस पूछा है, तो y और z लूंगा ही नहीं. मतलब इधर भी y और z लूंगा ही नहीं. तो इधर बेटा 3 लिया, राइट? 3i और इधर लिया रूट ऑफ 9. तो कैन आई से इट इज 3i upon 3 मतलब i. तो पहले 3 आंसर्स तो बहुत आसान है. कम ऑन. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस? I. Y एक्सिस? Z एक्सिस?
अभी सोच के आंसर. What is unit vector of this vector in xy plane? सोच के बेटा. आराम से. फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 3i plus 4j upon 5. Proud of you. Very nice. What is this vector in xy plane? What is this vector in xy plane? 3i plus 4j. तो वो आपका न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर क्या आएगा? साइज ऑफ दिस वेक्टर इन xy प्लेन व्हिच इज 5. बराबर. चलो एक बार ये समझ में आ गया ना, दूसरे दोनों आंसर इजी है. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इन yz प्लेन? अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना बेटा, ये एमसीक्यू शुरू हो गया. अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं ये एमसीक्यू शुरू हो गया. पता चला मैंने वेक्टर एक ही दिया और ये एक में से मैं 7 क्वेश्चंस बना सकता हूँ. यस और नो? 5 के आंसर्स आपने दिए. रैपिड फायर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस? y एक्सिस, z एक्सिस, xy प्लेन. वेरी गुड. yz प्लेन. वेरी नाइस. xz प्लेन. वेरी गुड. xyz स्पेस. सोचो मैंने एक ही लाइन दिया है. सोचो मैंने एक ही लाइन दिया. मैंने लिखा ही नहीं दिया. I'm so sorry. I have not kept any alarm of this time. मेरा फोन पागल हो गया. बंद हो जा रहे बाबा, बंद हो. समझा बेटा सातों क्वेश्चन? अभी आप लोग आ जाओ. माय गॉड यार, तेरा और मेरा अलार्म सेम है. फालतू में मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ. नहीं कोई बात नहीं. डर तो मैं भी गया था. नहीं सोचे, डर तो मैं भी गया था. मेरा किसी और का फोन बजता मैं बहुत डांटता हूँ, तो अभी मेरा ही फोन बजा तो स्टूडेंट्स ऐसे देखते क्या करेगा नयन, अभी तो अपने साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. तेरा टोन और मेरा टोन एकदम सेम है. सुना था ब्रेक टाइम में. मैं वही सोचा यार मैं 7:30 क्या रखूँगा चालू लेक्चर. चल बंद कर फटाफट. समझा बेटा? नहीं मुझे लगा मेरा फोन बजा तो आई वाज ओपन योर बुक प्लीज. ओपन योर बुक. पहले आप लोग आओगे थियरी नोट्स पे. थियरी नोट्स मींस यू आर ऑन पेज नंबर 10. यू आर ऑन पेज नंबर 10. हैंड रिटन नहीं बेटा, थियरी 11. हाँ हाँ सॉरी. हाँ हाँ ऑफ कोर्स. ये ओरिजिन अंदर ले लो या तो बाहर के कॉर्नर पे लो. एक बात बता बेटा, ये क्यूबॉइड है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो ये भी क्यूबॉइड है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. क्या फर्क पड़ता है? नहीं परफेक्ट. आर यू ऑन हैंड सॉरी कंप्यूटराइज नोट्स पेज नंबर 10. पेज नंबर 10. ये डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी करवा दिया था. रिपीट किया मैंने क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर के लिए जरूरी था. आर यू ऑन पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 डेफिनेशन नंबर 1. एक बार बेटा वापस रिवाइज कर लो. पेज नंबर 10. ये कंप्यूटराइज नोट्स. हाँ एवरीबॉडी कंप्यूटराइज नोट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 सब क्वेश्चन नंबर 1 टाइटल यूनिट वेक्टर. ध्यान से रिवाइज करो प्लीज. हो गया. अभी उसके बिल्कुल बाद में नल वेक्टर है तो नल वेक्टर की जरूरत नहीं है. उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था मॉड्यूल ऑफ अ वेक्टर. बराबर. मॉड्यूल ऑफ अ वेक्टर में एक कमेंट लिखना है. ये वाला अ वेक्टर में बी नेगेटिव बट इट्स मॉड्यूल मतलब मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव. अ वेक्टर में बी नेगेटिव बट इट्स मॉड्यूल कैन नॉट बी नेगेटिव. A vector may be negative, but its module cannot be negative.
ये हो गया। अब एकदम ध्यान से चेक करो, इसका मतलब अपना पेज नंबर 10 एकदम कंप्लीटली हो गया। आज ऑन पेज 11 याद करो, हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर का आर्टिकल बाकी रखा, राइट। अब वो पोजीशन वेक्टर के जो डार्क लेटर्स है मैंने वो करवाया, रीड करो प्लीज। अच्छा, वो डायग्राम है वो 2D में है कि 3D में है? एग्जैक्ट, बराबर। तो जो पॉइंट O है ना बेटा, O, उसको आप 0,0 लिखो। डायग्राम में जो पॉइंट O है उसको आप 0,0 लिखो। डायग्राम में जो पॉइंट P है उसको आप x, y लिखो। तो बताओ वेक्टर OP क्या हुआ फिर? वेक्टर OP क्या हुआ? कम ऑन हियर, तो बाजू में लिखो, बाजू में लिखो। वेक्टर OP इज x टाइम्स I प्लस y टाइम्स g। अभी एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट से 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट से 5,7, तो फिर ये वेक्टर क्या बनेगा? 5y प्लस 7। वेरी गुड। इसके कोऑर्डिनेट से -1, -4, -1i प्लस -4। समझा? जो x कोऑर्डिनेट है वो इधर डाल देने का, जो y कोऑर्डिनेट है इधर डाल देने का। मान लो 3D होता तो z भी डाल देने का। यस और नो? अभी उधर नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है, एकदम ध्यान से सुनो बेटा। एवरीबॉडी हियर, एवरीबॉडी हियर। ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। Select any point on the circumference wherever you want. Join them. So what is this? Radius. Now you put tip here. क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेंटर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, राइट। अब ये रेडियस वेक्टर थोड़े टाइम के बाद इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, या तो ऐसे या तो ऐसे। सोच के बोलना, रेडियस इज कांस्टेंट और नो? Radius is constant or no? Yes. But what about radius vector? No. Very good. Because direction change हो रहा है ना बेटा। A constant vector is the one whose magnitude and direction both remain constant. But a variable vector is the one, एक definition है बेटा constant vector का, और एक definition है variable vector का। तो tell me what is the meaning of variable vector? या तो उसका magnitude change हो रहा है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या तो दोनों चेंज हो रहा है। मान लो आप हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे हो और आपने अपना गाड़ी क्रूज कंट्रोल मोड पे डाल दिया, एंड यू आर मेकिंग श्योर कि वो एक ही स्पीड में जाएगा। 80 मतलब 80, 79.9 भी नहीं, 80.1 भी, राइट। और आप एक्सप्रेस हाईवे पे हो, आगे 10-15 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं है, एक भी खड्डा नहीं है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। That means your car is going with constant velocity. लेकिन मान लो एक हल्का सा स्पीड ब्रेकर आया और आपने थोड़ा सा ब्रेक मारा और आपका गाड़ी का स्पीड 80 के बदले 79.9 हो गया, then also it is variable। 80 का 79.9 हो ना। मान लो गाड़ी सीधा जा रहा था और आपको बीच में कोई पत्थर दिखा और आपने हल्का सा टर्न मार के फिर वापस लाया, तो वो जो टर्न मारा ना, that is also variable, right? What is the meaning of constant vector? Magnitude and direction both must remain constant. And what is the meaning of variable vector? Either magnitude is changing or direction is changing or both are changing. So please tell me, radius is constant or no? Yes. Radius is constant. ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। But radius vector is not a constant vector. क्यों? साइज भले सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब आप क्लॉक हैंड देखते हो, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, तीनों हैंड्स घूमते हैं ना, राइट। अभी साइज ऑफ द हैंड तो चेंज नहीं हो सकता, राइट। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? एवरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड चेंज होता है। सो इज रेडियस वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर की वेरिएबल वेक्टर? तो आपको जो पोजीशन वेक्टर के नीचे का जो पैराग्राफ दिख रहा है, इट इज अबाउट दिस। तो आई सजेस्ट वहां पे ये छोटा सा डायग्राम बनाओ बेटा। वो जो रेक्टेंगल का डायग्राम है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर का ये वाला, उसके आजू बाजू में बनाओगे तो चलेगा। और ये दो स्टेटमेंट्स लिखो, रेडियस इज कांस्टेंट, radius is constant, but radius vector is not a constant vector. Radius is constant,
but radius vector is not a constant vector. अभी आप पेज नंबर 11 के बॉटम पे दो छोटे से डेफिनेशंस लिखोगे, स्मॉल हैंडराइटिंग्स, और या तो आप इसको हैंड रिटन पेजेस पे लिख लो, बेस्ट है। एग्जाम के टाइम पे तो हम लोग हैंड रिटन पेजेस पढ़ेंगे ना। आई वांट यू टू बी ऑन पेज नंबर, हैंड रिटन पेजेस, पेज नंबर 3, राइट टॉप, पेज नंबर 3 का टॉप पे लिखो पहला डेफिनेशन, अ कांस्टेंट वेक्टर, अ कांस्टेंट वेक्टर लिखो। इट इज द वन whose magnitude, it is the one whose magnitude and direction, it is the one whose magnitude and direction both remain constant, both remain constant. लिखा डेफिनेशन। जो नॉर्मल रेडियस है, मतलब जो वेक्टर रेडियस नहीं है, उसका भी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों चेंज होगा? मतलब वो ऐसा- तो वो पार्टिकल घुमाते हुए दिखाई नहीं रही है ना। जब तू बोल रही कि वो वेक्टर नहीं है, मतलब वो मोशन में नहीं है। ओके, लिखा बेटा आप लोगों ने। नेक्स्ट डेफिनेशन, वेरिएबल वेक्टर, टाइटल दो वेरिएबल वेक्टर। A variable vector is the one, a variable vector is the one whose either magnitude is changing, whose either magnitude is changing or direction is changing, or direction is changing, or both are changing. A variable vector is the one whose either magnitude is changing or direction is changing or both are changing, or both are changing. ये समझा बेटा? Short? Okay. Now I want you to read this parts thoroughly well. अपना हैंड रिटन पेज 1 and 2 हो गया था। पेज 1 और 2 पे पूरा टिक कर लो। पेज नंबर 1 पूरा हो गया, पेज नंबर के बाजू में ही टिक कर लो, बिकॉज फ्राइडे से आपके डीसीटी शुरू हो रहे हैं, तो ये जितना पेजेस टिक किया है वो पोर्शन है। ओके, पेज नंबर 2 के बाजू में टिक करो, पेज नंबर 2 हो गया, हैंड रिटन पेज 2 हो गया, पेज नंबर के बाजू में टिक करो। अभी पेज नंबर 3 ध्यान से देखते जाओ। पेज नंबर 3 लेफ्ट टॉप, साइंटिफिक फॉर्म अभी तक नहीं हुआ है। पेंसिल से लिखो ऑन बोर्ड, पेंसिल से लिखो, पेन से प्लीज मत लिखना। उसके नीचे है हाउ टू सॉल्व 2x2 डिटर्मिनेंट, ऑन होल्ड, नहीं सिखाया अभी तक। उसके नीचे का पार्ट सिखा दिया बेटा, ध्यान से देखो। स्केलर इनटू स्केलर इज अ स्केलर, वेक्टर इनटू वेक्टर के दो पॉसिबिलिटीज है, वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, एंड स्केलर इनटू वेक्टर इज अ वेक्टर। बराबर, टिक करो प्लीज, हो गया। अभी आप आ जाओ पेज नंबर 3 के राइट साइड पे, उसका 1 and 2 नहीं पॉइंट हुआ है, पॉइंट नंबर 1 and 2 नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3 देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, टिक करो, हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखो, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, डू यू एग्री विथ मी? बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अभी उसके नीचे जो सेंटेंस है वो यही है, चेक करो, 4 के जस्ट नीचे, अ वेक्टर में बी नेगेटिव बट इट्स साइज इज नेवर नेगेटिव। तो पॉइंट नंबर 3 and 4 हुआ। अभी लेफ्ट साइड पे जैसे था ना हाउ टू सॉल्व 2x2 डिटर्मिनेंट, वैसे राइट साइड पे है हाउ टू सॉल्व 3x3 डिटर्मिनेंट, ऑन होल्ड, पेंसिल से लिखो ऑन होल्ड। बराबर। अभी बेटा पेज 4 पे आ जाओ। पेज 4 का लेफ्ट साइड टॉप हो गया, राइट, लेफ्ट साइड बॉटम अभी मैं करने जा रहा हूं लॉज ऑफ वेक्टर्स में। पेज नंबर 4 राइट साइड टॉप हो गया, चेक करो प्लीज। राइट साइड बॉटम अभी हुआ,
मैंने कितने आंसर्स बोले थे? 7। देखो ध्यान से बेटा, 7 आंसर्स है कि नहीं? आपका मेन वेक्टर कौन है? xi plus yj plus zk. In how many ways can you write this? Wait, xi दूसरा, yj तीसरा, zk. They are called axial vectors. जब आप 1 डायमेंशन में लिखते हो तो उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, राइट? जब आप 2 डायमेंशन में लिखते हो तो उसको बोलते हैं प्लेनार वेक्टर्स, और जब आप 3 डायमेंशन में लिखते हो तो उसको बोलते हैं स्पेशियल वेक्टर्स। बराबर समझा? तो सातों के सातों दिख रहे हैं उधर, मतलब पेज नंबर 4 एक्सेप्ट लेफ्ट बॉटम सब हो गया। अभी आप पेज नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। पेज नंबर 5 का लेफ्ट साइड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मार्क इट 10 स्टार। और बेटा एकदम ध्यान से पढ़ो, टोटल फोकस। उधर आपको डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला मिलेगा, मतलब ये वाला। उधर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा, ये वाला 3D में मिलेगा और 2D में मिलेगा। नीचे एक एग्जांपल है, एकदम बॉटम पे देखो बेटा, एक एग्जांपल है। वेक्टर है OP एंड व्हाट इज दैट वेक्टर? 3i plus 4j plus 5k। आराम से, ध्यान से प्लीज, रिकॉर्डिंग खराब होगा। बराबर है? अब यही वेक्टर दिया है मैंने और यही मैंने डिस्कस किया। Which 7 answers did I discuss? What is the size of this vector along x-axis, y-axis, z-axis, xy plane, yz plane, xz plane? समझा बेटा? श्योर? पेज नंबर 5 का लेफ्ट पार्ट पूरा टिक करो, राइट? पढ़ो। कैन वी पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम? पॉज करना बेटा, स्टॉप मत करना। ओके, आई रीस्टार्ट। सपोज बेटा मैंने 2 वेक्टर्स दिया ऑफ साइज 4 and 3, राइट? 4 and 3 आर इन द सेम डायरेक्शन। 4 is to the right side, 3 is to the left side. 3 is to the right side, 4 is to the left side. 4 and 3 are at right angles. That means I have given you 2 vectors. I have given you 2 vectors whose sizes are 4 and 3. Then vector R is called resultant vector. And the size of the resultant vector, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? Size will compulsorily lie between the sum and the difference, because that will be decided by the angle. नेक्स्ट टाइम मैं एक लॉ प्रूव करने वाला हूँ, which is parallelogram law of vectors, parallelogram law, और उसमें ये चीज कंफर्म भी करेंगे हम लोग। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, if the size of 2 vectors are 4 and 3 respectively, then the final answer of them will compulsorily lie between 1 and 7. अच्छा बेटा, ये स्केलर्स होते तो इसका एक ही आंसर होता। मैं 4 मीटर चल रहा हूँ, 3 मीटर चल रहा हूँ, मैं 4 मीटर चल रहा हूँ, 3 मीटर चल रहा हूँ, मैं 4 मीटर चल रहा हूँ, 3 मीटर चल रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस में मेरा डिस्टेंस कवर्ड इज 7 only, but can I say my displacement is different? So how many answers are possible for distance? That is called algebra. How many answers are possible for displacement? Infinitely many, क्योंकि 1 और 7 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं? Infinitely many. 1.1 भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि प्योर नंबर्स ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं। मेरा आंसर 1.5 भी आ सकता है, मेरा आंसर 2.13 भी आ सकता है, मेरा आंसर 3.14 15 16 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एनी डैम नंबर बिटवीन 1 and 7, बट इट कैन नॉट बी लेस देन 1 एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 7, राइट? अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको 2 फोर्सेस दिए, 7 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकेंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 17, फोर्थ ऑप्शन 20। वेरी गुड, बिकॉज डिफरेंस हो गया 3 और सम हो गया 17, तो मेरा आंसर 3 और 17 के बीच में ही होना चाहिए। इज इट बिटवीन 3 and 17? इज इट बिटवीन 3 and 17? इज इट बिटवीन 3 and 17? बट दिस इज नॉट। अभी ये भी हो सकता है बेटा, मैं ऑप्शन ऐसे दूं, which is not possible. 3 ना बेटा, सॉरी 3, हाँ चारों दिया, सॉरी ये 2 देना पड़ेगा क्योंकि 3 भी पॉसिबल ना। इज दैट क्लियर? श्योर?
अभी आप लोग हैंड रिटन पेजेस पे आ जाओ वापस एक बार। पेज नंबर 4, लेफ्ट साइड बॉटम, एकदम ध्यान से पढ़ो, वेटिंग फॉर यू। पेज नंबर 4, हैंड रिटन पेजेस, लेफ्ट साइड बॉटम, जो बाकी था। आर यू डन? अभी बेटा हम लोग एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। जितना अपना अभी तक का नॉलेज है, वी कैन सॉल्व सम एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सो एटलीस्ट यू नो कि हाउ डू दे सेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। आर वी ऑल ऑन पेज नंबर 43? लेट ऑल द हैंड रिटन पेजेस गेट ओवर, फिनिश ऑल द हैंड रिटन पेजेस। उसके बाद में वापस कंप्यूटराइज नोट्स पे आ रहा हूँ। देखो, अरे बेटा हैंड रिटन पेजेस 1 2 3 4 पीछे जाओ, पीछे लास्ट पेज तक आ जाओ, एकदम हैंड रिटन पेज। उसके बाद में वापस कंप्यूटराइज पेजेस शुरू हो रहे हैं। डू यू सी पेज नंबर 43? डू यू सी पेज नंबर 43? मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बोर्ड पे, आप वो कॉपी करोगे और बाद में उसके सिमिलर क्वेश्चंस में लिखवाऊंगा कि बाबा क्वेश्चन नंबर 1 के बाजू में लिखो सॉल्व 15 एंड 20। मतलब ये आपका होमवर्क हो गया। सुनो, होमवर्क कैसे करने का, ये राइट साइड आपका पूरा ब्लैंक पेज होगा। अगर मेरे साथ कॉपी कर रहे हो तो पेन से कर सकते हो, बिकॉज यू आर श्योर कि सर ने किया है और हमने कॉपी किया है। घर पे जब ये दोनों सम करते हो एंड यू आर नॉट श्योर कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, राइट, तो बेटर डू इट विद पेंसिल। ओके, शुरू करूं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर वी ऑल देयर? 3 कोप्लेनार वेक्टर्स आर गिवन बाय a equal to 4i plus 2j minus 3k, b vector is equal to i plus 3k plus j and c is equal to 3k plus 4i plus 5j। अभी इसमें एक थंब रूल याद रखने का हमेशा, i के नीचे i ही लिखने का, j के नीचे j ही लिखने का और k के नीचे k ही लिखने का, बिकॉज दे विल कंफ्यूज यू। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट। बेटा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एडिशन। रिजल्टेंट का मतलब होता है ऐड द वेक्टर्स। लिखो उधर, रिजल्टेंट के नीचे लिखो ऐड द वेक्टर्स, राइट। नाउ वन बाय वन, डोंट स्टार्ट विद मी, आई विल गिव यू टाइम। First vector is 4i plus 2j minus 3k. Vector A is 4i plus 2j minus 3k. Vector B, अब ध्यान से देखो क्या बोला है उन्होंने, i plus 3k plus j। तो मैं कैसे लिखूंगा? i plus j plus 3k, बराबर। i j k, यही सीक्वेंस फॉलो करने का हमेशा। तीसरा क्या दिया है? 3k plus 4i plus 5j। तो कैसे लिखूं? 4i plus 5j plus 3k। समझा बेटा? अच्छा, ये i के आगे अगर आपको 1 डालना है तो डाल सकते हो, बिकॉज i and 1i आर सेम। तो इधर में जस्ट ऐसे ही, जरूरत नहीं है वैसे, इधर 1 डाल दिया, इधर 1 डाल दिया, राइट। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ रिजल्टेंट बेटा? r। एंड व्हाट इज r? वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। डायरेक्ट आंसर लिखूं, चलेगा? 4i plus 1i plus 4i, 9i, 2 plus 1 3 plus 5, 8j, minus 3 plus 3 is what? Plus 3, plus 3k, yes or no? अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, डोंट बी हेस्टी। कभी कभी वो लोग रिजल्टेंट नहीं पूछते, बोलते फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो इधर रुकने का नहीं, फिर क्या बोलने का? रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 square. That means it is root of 81 plus 64 plus 9. 81 plus 9, 90. 90 plus 64, root 154. अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो, और सोचो मैं ये एक में 7 क्वेश्चंस बना सकता हूँ।
व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस? मारूंगा पकड़ के। आई अरे मैग्नीट्यूड पूछा कि यूनिट वेक्टर पूछा? मैं अपने आप को बराबर है, मैं सॉरी, मैंने यूनिट वेक्टर पूछा होता तो आई। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस? y एक्सिस, z एक्सिस, इन xy प्लेन सिर्फ ये दोनों लेने, इन yz प्लेन सिर्फ ये दोनों, xz प्लेन सिर्फ ये दोनों। मतलब मैं क्वेश्चन एक ही डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन उसके पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी सोचो यही क्वेश्चन में मैंने सिर्फ रिजल्टेंट वर्ड को ऐसे कर दिया होता, फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट, तो सोचो आपका आंसर ये नहीं होता, ये होता। मतलब मुझे करना कुछ नहीं था, एक माइनर चेंज करना था। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन आप कॉपी करोगे, उसके बाजू में लिखोगे सॉल्व 15 एंड 20। अब ध्यान से सुनो क्या करने का। आपके यहाँ पे बेटा 12 क्वेश्चंस है ना, तो यहाँ पे 12 का ही सोल्यूशन आना चाहिए। फिर यहाँ पे 13 to 23 है, तो यहाँ पे 13 to 23 का सोल्यूशन आना चाहिए। जितने क्वेश्चंस है इधर उसका सोल्यूशन। इज इट क्लियर? 3 2 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉज कर बेटा, वीडियो पॉज कर। एक मिनट। हाँ बोल। रिजल्टेंट के बाद में जब मॉड की साइन लिखते तो मैग्नीट्यूड होता है। वही तो बोला मैंने, रिजल्टेंट के बाजू में मॉड की साइन है तो मॉड्यूल। ये कौन है? ओपी अगर वेक्टर है तो मॉड क्या है उसका? मैग्नीट्यूड। वीडियो पॉज। So, K वाले में 3 plus 3 is 6, तो 1 plus 3 is 9. क्या कर रही है? -3 के +3 के +3 के 6 के -3 के। ध्यान से साइन भी तो देखना बेटा। अच्छा ध्यान से सुनो, वापस बोल रहा हूँ बिकॉज ये पार्ट रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। लेफ्ट साइड पे कुछ भी टिक नहीं करने का। लेफ्ट पेज पे जिधर क्वेश्चन है उधर सिर्फ ये साइंस आना चाहिए, या तो इम्पोर्टेंट या तो खोपड़ी। पॉइंट नंबर 1, लेफ्ट साइड पे आंसर भी टिक नहीं करने का। कोई भी सब्जेक्ट में जहां पे क्वेश्चंस है ना वहां पे आंसर टिक नहीं करने का, वर्किंग स्पेस में आंसर लिखने का। एडवांटेज, मान लो आप संडे एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हो, राइट? तो आपने सोल्यूशन वाला पेज हाइड कर दिया, दैट मींस दिस रिमेन एज फ्रेश क्वेश्चंस फॉर यू। अगर अभी आपने इधर डी टिक कर दिया है और आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर डी देख लिया, तो आपका दिमाग ए बी और सी के बारे में सोचता ही नहीं। इज दैट क्लियर? सो इन ऑर्डर टू ट्रीट देम एज फ्रेश क्वेश्चंस, इधर कुछ भी टिक नहीं करने का, जो भी लिखना है सब इधर लिखो, राइट? एग्जाम के टाइम पे ये हाइड कर देने का, करेक्ट? अभी क्वेश्चन नंबर 1 के बाजू में लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो सॉल्व 15 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में बाजू में लिखो सॉल्व 15 एंड 20। अब आप 15 और 20 दोनों के बाजू में जाओ। 15 और 20 के बाजू में लिखने का SA1 सेम एज 1, 15 और 20 के बाजू में। ये बेटा आपके लिए होमवर्क क्या? 15 एंड 20 होमवर्क है, तो बाजू में लिखो HW पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 15 और 20 के बाजू में लिखो HW होमवर्क। Come back please. Are we on question number 2? Are we on question number 2? आपके जो DCT का पेपर है उसमें मैं क्या टाइप के क्वेश्चन सेट करूंगा अभी थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है। Identify the correct option. What do you mean by parallel vectors? What do you mean by equal vectors? What do you mean by coplanar vectors? फिर ऐसे 3 वेक्टर दिया, मैंने बोला रिजल्टेंट ढूंढो, ऐसा। कोई तो एक वेक्टर दिया, बोला इसका साइज YZ प्लेन में कितना है, वो क्वेश्चंस भी आएंगे अभी। Are you on question number 2? If a vector is 3i plus 2j minus 4k. Question number 2. If the vector is 3i plus 4j minus 2k, then what is its magnitude? उन्होंने सिर्फ ये बोला है, हाँ? ये 2 है, ओके नो प्रॉब्लम, और ये 4 है, ओके। उन्होंने बोला कि what is the magnitude of this vector? अभी उन्होंने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, xy प्लेन ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो what is magnitude of any vector बेटा? Square root of sum of squares of components. Who is x component? 3. Y component? 2. Z component? -4. So is it root of 9 plus 4 plus 16? Is it root of 29? बराबर? तो आपका आंसर हो गया बेटा दिल्ली। Waiting for you. जब मैं बोर्ड पे कुछ सॉल्व करता हूं और वो आप कॉपी करते हो
तो आप पेन से कर सकते हो, लेकिन घर पे कुछ क्वेश्चंस खुद से करते हो तो पता नहीं है ना कि राइट है कि रॉन्ग है, तो बेटर पेंसिल से करो. तो बाय चांस इफ यू गो रॉन्ग यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक. I hope you are comfortable with my speed. Yes. I hope I'm not fast. Question number 3. पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? रिजल्टेंट. रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? सम. तीसरा क्वेश्चन में क्लियरली बोला ही है कि फाइंड आउट वेक्टर A माइनस वेक्टर B. राइट? फाइंड आउट वेक्टर A माइनस वेक्टर B. Are we on question number 3 everyone? सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. Everybody here. Vector A is 2i minus 5j plus k. 2i minus 5j plus k. And vector B is I plus j minus 3k. I plus j minus 3k. लेकिन उन्होंने बोला A minus B. तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप करते थे ना, A minus B मतलब इसका साइन चेंज करने का. ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. याद आ रहा है? तो what is 2i minus I? I. What is minus 5j minus j? Minus 6j. And this is plus 4k. ये बेटा आपका आंसर हो गया वेक्टर A माइनस वेक्टर B का. Yes or no? That means your answer is option Bombay. Your answer is option Bombay. थर्ड का आंसर इज बॉम्बे. Are you done? Fourth, very, very, very important. Absolute favorite of the examiners. Fourth question बेटा 5 स्टार मार्क करो. Fourth question 5 स्टार मार्क करो. मेरे साथ प्लीज शुरू मत करना. Fourth question के बाजू में आप लिख के रखो solve 13 and 23. ये दो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे. Okay? When I meet you on Friday ना, पहले मैंने ये जो भी होमवर्क दिया हुआ है उसके आंसर्स डिस्कस करो. राइट? बेसिकली हम लोग लास्ट के 10-15 मिनट में रख सकते हैं. बट फर्स्ट आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. आर यू ऑन फोर्थ क्वेश्चन? प्लीज डू नॉट स्टार्ट. 23 सॉल्व करना ना फोर्थ का. सॉल्व 13 एंड 23. तो अभी आप 13 और 23 पे जाके लिखो बाजू में सेम एज 4 SA4. 13 के बाजू में लिखो SA4. 23 के बाजू में भी लिखो SA4. चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से लिखो. इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब XY या तो XYZ 2D या तो 3D. इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q. P के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, -6 और Q के कोऑर्डिनेट्स से -2, -5, +7. यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट वेक्टर PQ. अब ध्यान से सुनो बेटा, पहला पॉइंट कौन सा है? 2, 3, -6 और वो पॉइंट का नाम क्या है? P. बराबर. दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा? Q. कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, -5, 7. बराबर. अभी उन्होंने वेक्टर PQ पूछा है कि QP? ध्यान से सुनो, टेक्निक क्या है? ध्यान से सुनो बेटा, वेक्टर का टेक्निक क्या है लिखने का? वेक्टर PQ का मतलब Q minus P times I plus Q minus P times J plus Q minus P times K. वेक्टर PQ का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट कौन सा है? तो लिखते वक्त कैसे लिखते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस? नाउ बिकॉज दिस इज I, यहाँ पे X और यहाँ पे X आना चाहिए, यहाँ पे Y और यहाँ पे Y आना चाहिए, यहाँ पे Z और यहाँ पे Z आना चाहिए. नाउ टेल मी who are 2, 3 and -6? Are they respectively PX, PY and PZ? बराबर. And what are -2, -5 and 7? QX, QY and QZ. Fill in the blanks. Come on, इधर क्या आएगा? QX कौन है? -2 minus PX -2 माइनस साइन इसका और 2 इसका.
times I plus what is qi minus 5 minus 3 times j plus 7 minus 6 7 plus 6 आएगा ना times k. So what is my final answer? minus 4i minus 8j plus 13k. ये मेरा आंसर है. बराबर. अब ध्यान से देखो बेटा इसके ऑप्शंस कितने डेंजरस है ना. आपको 4, 8 और 13 सब में दिख रहा है. आपको 4, 8 और 13 सब में दिख रहा है. पूरा गेम प्लस माइनस का है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन को चेंज करना तो देखो मेरे लिए कितना इजी है. इधर इन्होंने पीक्यू पूछा है ना, मैं क्यूपी पूछूंगा. कैन यू टेल मी क्यूपी का आंसर क्या आएगा? साइन चेंज कर दो. वेक्टर क्यूपी इज उल्टा ऑफ पीक्यू ना. वेक्टर क्यूपी इज नेगेटिव ऑफ पीक्यू, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या प्लस प्लस माइनस वाला? है ही. बट बाई चांस पूछा तो समझा क्या करने का, ध्यान से पढ़ने का. पीक्यू पूछा है कि क्यूपी पूछा है, यस और नो? तो बेटा फोर्थ सम आप कॉपी करोगे, 13 और 23 खुद से करोगे. ओके, फोर्थ का आपका आंसर हो गया दिल्ली. फोर्थ ऑप्शन. आर यू एंजॉयिंग MCQs? ये चैप्टर बेटा धीरे धीरे टफ होते जाएगा एंड यू हैव टू हैंडल दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. पूरा का पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है. दोनों अलाउड है. दोनों ध्यान से सुनो बेटा. आई के ऊपर आप कैप भी डाल सकते हो, आई के ऊपर आप एरो भी डाल सकते हो. अलाउड. दोनों अलाउड. बोथ मीन द सेम. Are you done? Are you done? अभी पैरेलल वेक्टर्स के लिए बेटा एक फॉर्मूला है, राइट? तो टेम्परेरीली आप ये फॉर्मूला सुनो. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ध्यान से सुनो. ये मैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो. फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान से सुनो. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन उनके x कंपोनेंट का रेशियो, y कंपोनेंट का रेशियो और z कंपोनेंट का रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए. कांस्टेंट एंड पॉजिटिव रहना चाहिए. अगर वो एंटी पैरेलल है तो कांस्टेंट एंड नेगेटिव. आई रिपीट, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन उनके x कंपोनेंट का रेशियो, y कंपोनेंट का रेशियो और z कंपोनेंट का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. ये वेक्टर है बेटा सपोज i प्लस जे, बराबर. ये वेक्टर है उसका डबल 2i प्लस 2j. ये वेक्टर है उसका ट्रिपल 3i प्लस 3j. तो सोच के बताओ ब्लू और रेड पैरेलल है कि नहीं? बिकॉज 2/1 इज इक्वल टू 2/1. अच्छा, ग्रीन और ब्लू वो भी पैरेलल है कि नहीं? राइट. अच्छा, ग्रीन एंड रेड वो भी पैरेलल है कि नहीं? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वेक्टर्स पैरेलल? In the question, I want you to underline these two vectors are parallel. In the question, I want you to underline these two vectors are parallel. अब वो वेक्टर का नाम उन्होंने A B दिया है कि PQ दिया है? A B दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ. Right? I am calling this as AX upon BX
इज इक्वल टू AY अपॉन BY इज इक्वल टू AZ अपॉन BZ. ठीक है, समझा? If two vectors are parallel, then this condition should be satisfied. समझा अच्छे से? श्योर? अभी पहला वेक्टर देखो 2 minus 3A बराबर. तो कैन आई से 2 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू A अपॉन समथिंग. ये मैंने A लिखा न्यूमरेटर में, AX AY AZ. अभी मैं डिनोमिनेटर में B लिख रहा हूं. 6 माइनस B एंड 3 बराबर. आपके पास तीन चीजें हैं 1 2 3 और उसमें दो अननोन्स है. कौन कौन अननोन्स है? A एंड B. तो पहले इसको कंपेयर करो बेटा और बाद में इसको कंपेयर करो, बिकॉज पहले वाले दोनों पता है मुझे 2 and 6. इसमें एक अननोन है और इसमें एक अननोन है. तो आई विल कंपेयर 1 with 2 and I will compare 1 with 3. तो what will I get? 2 upon 6 is minus 3 upon minus B. तो क्या आया बेटा? 1 upon 3 is 3 upon B. तो can I say B is 9 plus 9? B is plus 9. अभी A के बारे में सोचते हैं. Can I say 2 upon 6 is A upon 3? तो can I say A is 6 upon 6 which is plus 1? Again you have to be careful. चारों ऑप्शन में 1 और 9 तो है ही. प्लस माइनस का गेम है. एक भी साइन में गड़बड़ किया तो गए काम से. समझा कि वापस बोलो? If two vectors are parallel, then what should remain constant? The ratio of their components. X with X, Y with Y, Z with Z. I hope I was reasonably slow. सर जब आपने बोला इट्स कांस्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर पैरेलल, तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स का वो पॉजिटिव रहेगा 100% बेटा. उसका एक सिंपल रीजन बोलता हूँ. तो इसी को पैरेलल बोलेगा ना. मान ले एक भी वेक्टर उल्टा है. एग्जैक्ट. समझा? एक मिनट बिफोर यू कॉपी, हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी. मस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार. मस्त क्वेश्चन, फेवरेट. इसमें एक नया, बिकॉज इसमें एक नया वर्ड था, दे आर पैरेलल. तो पहले आपको ये सेंटेंस लिखना है कंपल्सरी कि बिकॉज दे आर पैरेलल दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. बेटा वीडियो पॉज करते हैं. पॉज. 6th question. 6th question. A vector is represented by 3i plus j plus 2k. Then its length in xy plane. ध्यान से देखो बेटा, वेक्टर 3 डायमेंशन में है लेकिन आपको उसका लेंथ पूछा गया है 2 डायमेंशन में. सो फर्स्ट आई विल राइट द वेक्टर. डोंट स्टार्ट विथ मी प्लीज. Vector is P and is given as 3i plus j plus 2k. हाँ, अभी ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको. What is its length? मतलब what is the size of this vector in xy plane? मतलब भले z दिया है, मुझे लेना नहीं, तो should it be root of 3 square plus 1 square? That is root 10. ये आंसर होगा. वेट प्लीज. इसमें से मैं कितने क्वेश्चंस बना सकता हूँ? 7. वेरी गुड. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस? 3. y एक्सिस 1. z एक्सिस 2. xy प्लेन सोच के बोलना. yz प्लेन. yz प्लेन. yz प्लेन. इसका मतलब आपका प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया. चेक करो. बराबर ना. 6th और 11th का क्वेश्चन सेम है. एग्जामिनर ने क्या किया? एक्स वाई को चेंज करके वाई जेड कर दिया. मतलब एग्जामिनर ऐसे एक में से 7 क्वेश्चंस बना सकता है. समझा? 7 भी नहीं 14. मैं यूनिट वेक्टर पूछूंगा तो आपको वेक्टर लिख के अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिखना है. यस और नो? एक्स एक्सिस खाली पूछा रहता है 3 बोले 3 अगर माइनस दे तो देगा तो माइनस तो भी 3 ही लिखने का. लेंथ पूछा है बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी. ये -3. अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने.
-3i plus j -2k है और मैं बोलता हूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो वेक्टर कैन बी नेगेटिव नो, लेकिन मैंने तो लेंथ पूछा है तो +3। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। एक मिनट, आपको 6th समझा? 6th में आप बोलो सॉल्व 11th, तो बेटा मैं 11th में इधर ही सॉल्व कर देता हूँ बिकॉज क्वेश्चन सेम है। तो व्हाट इज साइज ऑफ दिस वेक्टर इन yz प्लेन? इज इट रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर? इज इट रूट ऑफ 5? मतलब आपका 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया बॉम्बे, बराबर ना? 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया बॉम्बे और आपका 6th क्वेश्चन का आंसर था √10 मतलब C। 6th and 11th both on the board, copy both of them, waiting for you। Video pause। Mind you, your DCT का पेपर करेक्शन, your Sunday एग्जाम का पेपर करेक्शन will be done as per the rules of NEET, CET and JEE। NEET में 1 correct answer gives you 4 marks, no attempt gives you 0 and wrong answer gives you -1। CET में so far there is no negative marking, 1 question 1 mark, no attempt 0, wrong attempt also 0, तो you should go for wrong attempt also क्योंकि minimum 0 ही मिलने वाला है। मैं CET की बात कर रहा हूँ। JEE मेंस का स्टाइल सेम एज नीट, करेक्ट आंसर 4 मार्क्स, नो अटेम्प्ट 0, रॉन्ग आंसर -1। चलो बेटा 7th क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। आप लोग बताओ क्या आंसर होना चाहिए? 7th क्वेश्चन बहुत इजी है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? करेक्ट, तो आपका आंसर हो गया 10, बराबर। 8th क्वेश्चन को बेटा 5 स्टार मार्क करो, 8th क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क करो और 8th क्वेश्चन के बाजू में लिखो सॉल्व 17, 21 एंड 26। ओके, अब ध्यान से सुनो। The resultant force of 5 Newton and 10 Newton cannot be, underline cannot be। मेरे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन, मेरे पास दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन, तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स का आंसर किसके और किसके बीच में हो सकता है? कैन आई से 10 + 5 एंड 10 - 5, मतलब मेरा FR का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स। मेरा आंसर 5 से कम नहीं हो सकता, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरा आंसर 5 से कम नहीं हो सकता, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। देयरफॉर माय आंसर इज C। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर इज C। समझा? आपको बाद में घर पे जाके ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये तीनों के बाजू में जाके लिख लेना सेम एज 8, क्योंकि 8 क्वेश्चन मैंने करके दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स, वेरी फेवरेट। Done? 9th question। इसमें बेटा चारों ऑप्शंस रॉन्ग है, उसका रीजन बोलता हूँ। पहला ऑप्शन है वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज 0, वेक्टर प्लस वेक्टर शुड बी वेक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है लेकिन राइट हैंड साइड स्केलर है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन इज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर इनटू वेक्टर शुड बी वेक्टर, बराबर। अब ध्यान से सुनो, पहले तो उन्होंने जो दिया है ना मैं वही लिखता हूँ और बाद में बोलूंगा कि चारों ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, तो हमको कोई भी एक को तो करेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B, क्वेश्चन नंबर प्लीज, हाँ, इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, बराबर, ऐसा दिया है ना? ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सो कैन आई से वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर A, साइड चेंज किया इसने, प्लस वेक्टर B should be null vector, right? Because sum of two vectors is a vector, difference of two vectors is a vector, तो इधर 0 वेक्टर आना चाहिए। 0 is the only number as an exception जिसके ऊपर आप वेक्टर साइन डाल सकते हो, बाकी कोई भी नंबर नहीं, या तो फिर इसको नल वेक्टर लिखने का, right? Now vector A and vector minus A is 0, that means size of vector B is 0, right? Therefore B vector
इज जीरो वेक्टर अपॉन 2. वेक्टर अपॉन स्केलर पॉसिबल होता है, स्केलर अपॉन वेक्टर पॉसिबल नहीं होता है. व्हाट इज नल वेक्टर अपॉन 2? नल वेक्टर. इसका मतलब एक्चुअली आपका लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि बी के अपना जीरो के ऊपर वेक्टर साइन होना चाहिए. तो आप लास्ट ऑप्शन में बेटा उसके ऊपर एरो डाल दो जीरो के ऊपर, और अभी लास्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ. अदरवाइज चारों क्यों रॉन्ग थे समझा? अगर मैंने b इक्वल टू 0 ऐसे लिखा ना, तो स्टूडेंट मेरे आंसर को चैलेंज कर सकता है कि सर हाउ कैन वेक्टर बी अ स्केलर. इसलिए इधर एरो होना जरूरी है. समझा? आंसर इज दिल्ली. आंसर इज दिल्ली. ये पेज के एंड पे स्टॉप करें. ये पेज के एंड. नाइन्थ क्वेश्चन डन. 10th मैंने आपको होमवर्क दिया है, बराबर ना? नहीं, 10th होमवर्क दिया है, सॉरी 10th करना है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स? पहले तो व्हाट इज सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स? 3i plus 4j. एक वेक्टर 3i है और दूसरा वेक्टर 4j है, तो उनको ऐड करो तो आंसर क्या आएगा? 3i plus 4j. अभी उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो लिखने का कैसे ध्यान से सुनो. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. वेक्टर p उन्होंने दिया है 3i, तो मैं 0j अपने जेब से डालूंगा. वेक्टर q उन्होंने दिया है 4j, तो मैं 0i अपने जेब से डालूंगा. राइट? तो व्हाट इज रिजल्टेंट? वेक्टर p प्लस वेक्टर q. इज इट 3i प्लस 4j? लेकिन उन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर नहीं पूछा है, उसका साइज पूछा है. तो व्हाट इज साइज ऑफ द वेक्टर? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इज इट 5? आंसर इज 5. ऑप्शन सी. इसमें रिस्की ऑप्शन कौन सा है? 7. क्योंकि स्टूडेंट 3 plus 4 ऐड करें. यू कैन नॉट. अच्छा 7 कब आता? जब एक 3i होता दूसरा 4i होता, या तो एक 3j होता और दूसरा 4j होता, तो आंसर 7. लॉजिक समझा बेटा? दोनों में i होता या तो दोनों में जो j होता, तो मेरा आंसर 7 आता. Are you done? 11th ऑलरेडी हो गया अपना. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दिस क्वेश्चन इज प्योरली योर इंसल्ट. इतना पपलू क्वेश्चन है. उन्होंने बोला कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है. इक्वल मतलब उनका सब कुछ मैच होना चाहिए. ध्यान से देखो बेटा, x कंपोनेंट के साथ x कंपोनेंट मैच हो रहा है, x कंपोनेंट के साथ x मैच हो रहा है, y के साथ y मैच हो रहा है, तो z के साथ z मैच होना चाहिए. तो कैन वी से a is equal to 5? अंडरलाइन द वर्ड इक्वल. अभी आर्गुमेंट लिखो. सिंस दे आर इक्वल वेक्टर्स, हाँ आर्गुमेंट लिखो बेटा. सिंस दे आर इक्वल वेक्टर्स, therefore their components must match. Therefore their components must match. सब कुछ मैच करोगे तो बेटा a का आंसर क्या आएगा? 5. प्लस 5 की माइनस 5? वो भी देखने का, वो भी देखने का. Understood the lecture of the day? Yes. Understood the homework? Yes. Right? Everything? So we stop here for the day. Do all the questions. इधर मैंने बोला था solve this, solve this, solve this. Before your exam starts, before your DCT starts, it is quite possible. It is quite possible कि starting का 10 मिनट में आपके पहले doubts clear कर लूँ, बाद में DCT लूँ और बाद में lecture continue करूँ. ये भी हो सकता है कि एकदम end में मैं exam, दोनों possible है, right? If I don't want to interrupt the recording, then mostly I will do the second thing. First 75 minutes lecture, last 15 minutes DCT.
Come prepared. What is the portion? Whatever I have taught till today. Everything. Bye bye. See you. Recording stops. Please.